I hope everyone is seeing the screen. रीजंस को हम लोगों ने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था: चेक ट्रांजैक्शंस, डायरेक्ट एंट्रीज इन कैश बुक और पासबुक, एरर्स और मिस्टेक्स। ये हम लोगों ने 11 रीजंस फाइंड आउट किए व्हाई देयर इज अ डिफरेंस इन बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। Starting with today's lecture, I want you all to go through all the 11 transactions, all the 11 reasons that we have written above. And I will tell you one thing, 11th वाला छोड़ दो, बाकी 10th को देखोगे ध्यान से तो you will find one common feature in all the 10 transactions, 10 reasons written. Can anyone from you tell me what is that one common thing in between all the 10 transactions written above? Yeah, I think there was some technical problem. Fine. आवाज आ रहा है अभी बरोबर से? या फाइन. सो मैंने एक सवाल सिंपल सा पूछा था कि अगर हम लोग ये 10 रीजंस को एनालाइज करने की कोशिश करें, सो व्हाट इज दैट वन कॉमन थिंग विच इज there in all the 10 reasons. And Deepika Mane, I think, gave it very clearly that all these transactions are recorded either in cash book or in passbook. So analysis of reasons. When all the above mentioned reasons are analyzed, it can be concluded that all transactions are either recorded in cash book or they are recorded in passbook only. या तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड हो रहे हैं या फिर पासबुक में रिकॉर्ड हो रहे हैं। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है जो दोनों जगह पे रिकॉर्ड हुआ है या दोनों जगह पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो पहला बात दिमाग में याद रख लेना। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग बैंक reconciliation statement, only such transactions are to be considered. Which type of transactions? Either it is recorded in cash book or recorded in passbook only. हमको ऐसा ही transactions चाहिए. In other words, दूसरे शब्दों में बोलने जाओगे तो those transactions which are recorded in both the books or
not recorded in both the books will not be considered while preparing बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट बोल रहा हूं। पहले बात तो हमने एनालाइज किया तो हमको पता चला कि ये ट्रांजैक्शन या तो कैश बुक में रिकॉर्डेड है या फिर पासबुक में रिकॉर्डेड है। आगे चल के हमने देखा इसका मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में है तो वो पासबुक में नहीं है, और पासबुक में रहेगा तो वो कैश बुक में नहीं है। हमको ऐसे ही ट्रांजैक्शन बीआरएस के वक्त चाहिए। तो उसी को दूसरे शब्दों में क्या याद रखने का कि अगर कोई ट्रांजैक्शन दोनों जगह पे रिकॉर्डेड है या दोनों जगह पे रिकॉर्डेड नहीं है तो वो ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आएगा। बोलो ये बात समझ में आया क्या आप लोगों को? Now today we will be doing something very important, that is we will be classifying these transactions. Classification of transactions. Okay, which transactions? The reasons for differences in balance as per cash book and balance as per passbook. We know by this time that okay, let me try making, हुआ तो well and good, नहीं तो फिर मैं normal table बनाएगा। If we try to analyze the reasons for differences in what is called as the given transactions, we can say one thing for sure, that it will be either recorded in cash book or it will be recorded in passbook. Now, the moment I say it is recorded in cash book, my dear friends, remember one thing for sure, that if it is recorded in cash book, का दूसरा मीनिंग होता है that it is not recorded in passbook. क्या मीनिंग होता है? It is not recorded in passbook. और recorded in passbook है मतलब याद रख लेना इसका दूसरा मीनिंग है इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये दिमाग में बहुत क्लियर रख लेना। हम लोगों ने एनालाइज किया रीजंस, दे आर आइदर रिकॉर्डेड इन कैश बुक और दे आर रिकॉर्डेड इन पासबुक। हमने उसको अलग अलग कर दिया रीजंस को, रिकॉर्डेड इन कैश बुक, रिकॉर्डेड इन पासबुक। फिर मैं अभी आपको ये बोल रहा हूं कि इफ ए ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक दैट मीन्स it is not recorded in passbook, and if it is recorded in passbook it is not recorded in cash book। एकदम सिंपल सा बात याद रख लेना। Okay, now what are the two sides? Please tell me very carefully, what are the two sides of a cash book? कैश बुक के दो साइड्स के नाम क्या है जरा बताओ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? Are you all able to listen what I am saying? हाँ, एक ही जन का जवाब है, बाकी लोग का नेटवर्क का इश्यू है क्या कुछ?
ओके, आई एम रिपीटिंग व्हाट आई सेड अर्लियर। हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ रीजंस, ठीक है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसमें मैंने बताया रीजंस हमारे जो हमने सीखे हैं उसमें वी हैव कंक्लूडेड दे आर आइदर रिकॉर्डेड इन कैश बुक और रिकॉर्डेड इन पासबुक। नाउ माय क्वेश्चन वाज व्हाट आर द टू साइड्स ऑफ अ कैश बुक? What are the two sides of a cash book, my dear friends? रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड। आता नहीं है इसलिए जवाब नहीं दे रहे हो कि नेटवर्क का इशू है? इसके लिए मैं बहुत टेंशन में हूं। रिसिप्ट साइड एंड पेमेंट साइड, डेबिट क्रेडिट नहीं होता है विष्णु, दे आर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। पासबुक में कोई मेरे को बता सकता है कि आपने पासबुक देखा रहेगा तो उसके अंदर दो कॉलम्स रहते हैं, क्या क्या रहता है, कोई बता सकता है क्या? पासबुक कभी देखा होगा तो एक रहता है विड्रॉवल्स, वेरी गुड साधना, और एक रहता है डिपॉजिट्स। यस, रिसिप्ट यानी पैसा आता है, पेमेंट यानी पैसा जाता है, विड्रॉवल यानी बैंक से पैसा निकाला, डिपॉजिट यानी बैंक में पैसा जमा किया। अब एक बात याद रख लो, बहुत सिंपल सा नोटेशन हम लोग यूज करने वाले हैं दोस्तों, कि अगर कैश बुक के रिसिप्ट साइड में हम लोगों ने पैसा डाला, सो पैसा अगर रिसिप्ट साइड में आया तो उससे क्या होने वाला है, हम लोगों का कैश बुक का जो बैलेंस है वो बढ़ जाएगा। अगर मैं कैश बुक को सी बोलूं, बढ़ जाएगा, तो आई विल से सी प्लस। क्या बोलेगा मैं? सी प्लस। वही अगर मेरा एंट्री पेमेंट साइड में हुआ है, पेमेंट साइड में हुआ है, तो नेचुरली मेरा पैसा कम होने वाला है कैश बुक का, यानी उसको मैं नोटेशन देते वक्त नोटेशन देगा सी माइनस। तो विड्रॉवल में अगर मैं बात कर रहा हूं, विड्रॉवल की बात कर रहा हूं, तो विड्रॉवल में मेरा बैंक का बैलेंस कम होने वाला है, इसीलिए विड्रॉवल होता रहेगा। तो मैं उसको अपने अकाउंटिंग भाषा में मैं बोलेगा पेमेंट साइड, सॉरी पासबुक को पी, और विड्रॉवल हो रहा है तो पी माइनस। और अगर डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है मतलब मेरा पैसा बैंक में बढ़ने वाला है, इसीलिए जब भी पैसा कोई डिपॉजिट करेगा मेरा पासबुक का बैलेंस उसके वजह से बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं लिखते वक्त उसको जो है आई विल राइट इट एज पी प्लस। तो ये चार शब्द याद रख लेना, बहुत जरूरी है। सी प्लस, सी माइनस, पी माइनस, पी प्लस। सी प्लस में लिखा मतलब कैश बुक में रिसिप्ट साइड में लिखा, सी माइनस लिखा मतलब कैश बुक में पेमेंट साइड में लिखा, पी माइनस यानी विड्रॉवल हुआ बैंक से, और पी प्लस यानी बैंक में पैसा जमा हो गया। तो इफ अ ट्रांजैक्शन, नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट बोथ कैश बुक एज वेल एज पासबुक। नाउ थिंक दिस वे, अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ मतलब पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, यानी पासबुक का बैलेंस को उसके वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको मैं अपनी भाषा में याद रखने के लिए बोलेगा सी प्लस पी इज इक्वल टू, क्या नाम देगा उसको मैं? सी प्लस पी इज इक्वल टू। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स। इसको जितना अच्छा तुम समझ के लोगे उतना तुम्हारे लिए इजी है। तो इफ यू सी दिस साइन C plus P is equal to, what does that mean? That transaction is recorded on the receipt side of cash book, but it is not recorded on the payment side. It is not recorded, sorry, on the passbook. When we look at the second transaction, payments, so payments में हम लोग क्या लिखेंगे? C minus and P is equal to, क्या लिखेंगे हम लोग? C minus
P इज इक्वल टू, वही अगर विड्रॉवल्स हुआ बैंक से, अगर हमने पैसा निकाला तो कैश बुक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो C इज इक्वल टू, और पासबुक का बैलेंस कम होएगा तो वी विल से P माइनस। वही अगर बैंक में जाके हम लोगों ने डिपॉजिट किया पैसा तो वी विल से इट इज सी इज इक्वल टू, कैश बुक में कोई फर्क नहीं पड़ा और पासबुक का बैलेंस जो है वो बढ़ गया। तो आपको सबसे पहला ये चार नोटेशंस हर क्वेश्चन में याद रखना है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कैश बुक के रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड हुआ है और पासबुक में नहीं हुआ, करेक्ट है रॉन्ग है वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन उसको बोलते वक्त बोला जाएगा C प्लस पी इज इक्वल टू, अगर कैश बुक के पेमेंट साइड में रिकॉर्ड हुआ और अगर हम लोग को उसको लिखना है तो हम लोग उसको बोलेंगे C माइनस पी इज इक्वल टू। अगर कोई ट्रांजैक्शन पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है विड्रॉवल साइड में और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इट विल बी कॉल्ड एज C इज इक्वल टू P माइनस। एंड फाइनली इफ वी हैव डिपॉजिट्स, ध्यान में रख लेना, इट विल बी कॉल्ड एज C इज इक्वल टू P प्लस। बोलो ये चारों नोटेशंस आप लोगों को समझ में आया क्या, या हमको हर क्वेश्चन में हर जगह पे लिखना है? Any doubts? Anybody wants to ask anything regarding this can ask. It's very simple, logical एकदम, कुछ उसके अंदर rocket science नहीं है। Now, by nature, we proceed to something again very important, balances in cash book and passbook. बोलो, cash book has predominantly which type of balance? Cash book has which type of balance, my dear friends? Cash book predominantly has debit balance. This is called as normal balance. What is this called as? Normal balance. वही अगर हम लोग आगे देखेंगे तो पासबुक के बारे में अगर हम लोग सोचे तो पासबुक प्रीडोमिनेंटली, अगर आप लोग सोचोगे तो प्रीडोमिनेंटली ध्यान में रख लेना, पासबुक हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तो याद रख लो, कैश बुक हैज डेबिट बैलेंस एंड पासबुक हैज credit balance. Now, being a businessman, we always know that businessman can overdraw. Overdraw means उनका जितना बैलेंस है उससे ज्यादा वो विड्रॉ कर सकते हैं। That is called as overdraft balance. Overdraft balance यानी जितना है उससे ज्यादा वो कर सकते हैं। तो अगर ओवरड्रॉ का फैसिलिटी किसी ने यूज किया रहेगा तो याद रख लो, cash book will start showing something called as credit balance, and at the same time passbook will start showing debit balance. So you have to understand basic criteria कि normally cash book जो है that will show debit balance and normal balance in cash passbook is credit balance। बस इतना ही याद रख लो, बाकी का उल्टा उल्टा चलते रहेगा। तो हमारे लिए क्वेश्चन में चार प्रकार के क्वेश्चंस यहीं पर तैयार हो गए। So these are the four types of balances which may be given to us in the question, and you have to find out the other. So types of questions. So type 1. Remember carefully. Type 1 यानी you will be given balance as per cash book and you have to find out balance as per passbook. Type 2.
you will be given balance as per passbook and you have to find out balance as per cash book. Type 3, you will be given overdraft as per cash book and you have to find out overdraft as per passbook. And type 4 obviously will be, you will be given overdraft as per passbook and you have to find out overdraft as per cash book. हमने थोड़ी देर पहले ही समझ लिया था, बैलेंस एज पर कैश बुक इज डेबिट बैलेंस, बैलेंस एज पर पासबुक इज क्रेडिट बैलेंस। कभी कभी उन लोग नॉर्मल या ओवरड्राफ्ट नहीं देंगे, बोलेंगे द कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज नॉर्मल बैलेंस। बोलेंगे कैश बुक शोज क्रेडिट बैलेंस, तो आपको समझना है कि इट इज अ ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अगर आप ध्यान से देखते हो तो टाइप 2 एंड 3 ये दोनों में यू आर गिवन क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए टाइप 2 एंड 3 सॉल्व करते वक्त जो फॉर्मूला यूज होता है वो सेम रहता है और टाइप 1 और 4 सॉल्व करते वक्त जो फॉर्मूला यूज होता है ये दोनों सेम होता है। एग्जाम में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। मैं कोशिश करता हूं अगर मैं इसको कुछ शेप्स दे सकता हूं क्या, आई थिंक आई कैन। Let me just check. I don't know how that will look like, but we can try. ये चल जाएगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एक बड़ा बनाना पड़ेगा 1 and 4 के हिसाब से। So type 1 and type 4 these are similar questions and type 2 and type 3 these are similar questions. एग्जाम में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग। ये बहुत जरूरी है, तुम लोग को मालूम पड़ना चाहिए कि तुम कौन से प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उसके हिसाब से दो फॉर्मूला है। क्या अच्छा दिख रहा है क्या, समझेगा क्या तुम लोग को? टाइप 1 टाइप 4 इज सेम एंड टाइप 2 टाइप 3 इज सेम। बहुत कलाकारी सीख गया है मैं आजकल वर्ड डॉक्यूमेंट में। अभी ये सब कॉमर्स छोड़ के मैं एनिमेशन सिखाने को जाने वाला है। चलो सिद्धांत चौहान ऑलरेडी तू एनिमेशन छोड़ के इधर आया है मेरे से कॉमर्स सीखने को। सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बीआरएस। अब हम लोग बहुत मैकेनिकल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस तुमको सिर्फ है ना थॉट प्रोसेस किधर अप्लाई करना है मालूम है क्या? गिवन ट्रांजैक्शन कौन से कैटेगरी का, इधर दिमाग चलाना है। इसके आगे मैं तुमको फुल हथौड़ा छाप फॉर्मूला सिखा देगा कि ये आया तो ये, वो आया तो वो। क्या फॉर्मूला है? देयर आर टू फॉर्मूलाज। फॉर्मूला वन इज फॉर टाइप 1 एंड टाइप 4 क्वेश्चन। ये बाय हार्ट करना है, इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने को मत जाओ, मैं बाद में कभी टाइम मिलेगा तो बताता हूं।
अभी आपको पहले समझना है कि अगर एक बीआरएस बनता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बीआरएस कैसे बनता है, तो समझ लेना कि मेसर्स, लेट अस से एनीथिंग, राम ब्रदर्स, we are preparing bank reconciliation statement on 31st March 2018। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमेशा एक पर्टिकुलर तारीख को बनता है, ये याद रख लेना। ऑलवेज आई टोल्ड यू, प्रिफरेबली एट द एंड ऑफ द ईयर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर इट मे बी प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ और इवन हाफ ईयरली। तो इसमें कॉलम्स रहते हैं पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज। तो पर्टिकुलर्स, रुपीज रुपीज में सबसे पहले अपने को देखने का क्या दिया है करके। लेट अस से दैट एग्जांपल के तौर पर वी आर गिवन बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वट एवर इज द अमाउंट इट विल बी रिटर्न इन द आउटर कॉलम। नाउ बैलेंस एज पर कैश बुक लिखने के बाद हमको क्वेश्चंस में उन लोग रीजंस देंगे। नाउ कुछ रीजंस इसमें ऐड होने वाले होंगे और कुछ रीजंस जो है इसमें से लेस होने वाले रहेंगे। Some reasons will be added and some reasons are to be deducted. Now it depends कि क्या है कैसा है करके। ये लाइन यानी ट्रांजैक्शन है क्या? सो ये जो भी अमाउंट आएगा वी विल राइट इट एज से एक्स 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 एक्स। देन इनर कॉलम से आउटर कॉलम में अमाउंट जाएगा, आउटर कॉलम में जो भी दिया है उसमें वो अमाउंट वापस ऐड हो जाएगा, ये तीनों का टोटल वट एवर यू गेट एंड देन यू विल गेट पर्टिकुलर थिंग वन टोटल। फॉर्मेट क्यू याद रखने का बाद में बताएगा। फिर कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होंगे जो लेस होने वाले हैं, तो ये लेस क्या होंगे, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट आल्सो। ये सबका टोटल जो है लेस हो जाएगा और फिर जो आंसर आएगा that will be, if you have started with balance as per cash book you will get balance as per passbook। तो सवाल उठता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन ऐड में आएगा और कौन सा ट्रांजैक्शन लेस में आएगा, इसके लिए ये फॉर्मूला। तो ऐड में हम लोग ऐड करेंगे दोस ट्रांजैक्शंस which are of the nature of C minus P is equal to and C is equal to P plus।
फर्स्ट और फोर्थ का टाइप का क्वेश्चन आया अगर, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, दोज ट्रांजैक्शंस व्हिच बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ C minus P is equal to and C is equal to P plus, and we will deduct those transactions which are of the category of C plus P is equal to and C is equal to P minus. तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज डिराइव्ड। अब उसके पीछे थोड़ा सा हिस्ट्री है, अभी मैं फिलहाल उस हिस्ट्री के तरफ नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ फॉर्मूला बाय हार्ट करो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू। सेकेंड इज फॉर्मूला टू। फॉर्मूला टू इज फॉर टाइप 2 and type 3 type of questions. And what will be that? It's very simple. Add में क्या आएगा, C plus P is equal to and C is equal to P minus, और लेस में क्या आने वाला है, C minus P is equal to and C is equal to P plus। अभी मैं बोला उतना ही सिर्फ समझ के लो। हम लोग क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजैक्शंस मार्क करेंगे, और ट्रांजैक्शंस मार्क करने के बाद जो दिया रहेगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ क्वेश्चन समझ गए तो आगे हमारा काम बहुत आसान है। फिर उसके बाद डायरेक्टली हम लोग थोड़ा छाप मेथड, ये दिखा तो ऐड, वो दिखा तो लेस, इस प्रकार से आपका बीआरएस बनता है। तो क्या क्या आज सीखा हम लोगों ने, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था द 11 रीजंस फॉर डिफरेंसेस इन बैलेंस एज पर कैश बुक and balance as per passbook. After completing that, today we started our lecture by understanding one small thing, that ये रीजंस को ध्यान से देखो तो मालूम पड़ता है कि या तो ये कैश बुक में रिकॉर्डेड है या फिर ये पासबुक में रिकॉर्डेड है। तो हमको बीआरएस में वही ट्रांजैक्शन चाहिए विच आर आइदर रिकॉर्डेड इन कैश बुक और रिकॉर्डेड इन पासबुक। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग बीआरएस हम लोग वही ट्रांजैक्शन लेते हैं। In other words, those transactions which are recorded at both places or both which are not recorded will not be considered while preparing BRS. फिर हमने एक टेबल बनाया called as classification which is showing the reasons. So we understood that ये जो जैसा रहता है तो उसको अपन ने नोटेशंस दिया, C plus P is equal to C minus P is equal to C is equal to P minus C is equal to P plus। उसके हिसाब से हम लोगों ने ये भी सीखा कि कैश बुक पासबुक में बैलेंसेस कैसे होते हैं। तो अपने को पता चला कैश बुक हैज ए नॉर्मल डेबिट बैलेंस, पासबुक हैज ए नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस, whereas cash book has an overdraft credit balance and passbook has overdraft debit balance. So these were something very important learnings जो हम लोगों को ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखा, तो वी न्यू देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड 2 काइंड्स ऑफ फॉर्मूलाज व्हिच आर यूज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, और उसके बेसिस के ऊपर हम लोग जो है आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बोलो इधर तक सबको समझ में आया क्या? एनीबॉडी वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग, वुड लाइक टू टॉक एनीथिंग, so you can definitely go ahead, else the theoretical part of this chapter is completed from my side.